students, today we are going to start civics chapter 3, electoral bodies. Previous video we covered up to previous video में मैंने आपको कौन-कौन से टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे. First, it is good to have political competition. Second, what is our system of election? And third, reserved constituencies. Now let us start these topics: voter list, second, nomination of candidates, third, election campaign, fourth, polling and counting of votes, fifth, what makes elections in India democratic, sixth, independent election commission, seven, popular participation, eight, expectation of election outcome, nine, challenges to free and fair election. So now let us start the first topic, voter list. वोटर लिस्ट क्या होती है? वोटर लिस्ट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि वोटर लिस्ट के बारे में है. एक बार जब once the constituencies are decided, the next step is to be decide who can and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. एक बार जब कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड हो जाती है तब नेक्स्ट स्टेप यह होता है कि कौन लोग वोट करेंगे. इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. दिस लिस्ट इज कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट. पहले हमने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था. नो वन शुड बी ड्राइव द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन. हमारी कंट्री में सारे सिटीजन जो 18 ईयर से अधिक होते हैं वे क्या करते हैं? इलेक्शन में वोट कर सकते हैं. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट. A complete revision of a voter list is done every 5 years. A new system of election photo identity card has been introduced. जो नया सिस्टम आया है इसमें एक वोटर लिस्ट का हमारे पास कार्ड होता है और जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको उस कार्ड को ले जाना पड़ता है क्योंकि उस कार्ड में हमारी पूरी डिटेल्स दिए रहते हैं. वो कार्ड हमें क्या करता है? इंट्रोड्यूस कराता है. बट फॉर वोटिंग the voters can show reaction during the last also. Next point, nomination of candidates. There is no restriction and anyone to contest an election. लेकिन इलेक्शन कैंडिडेट होने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 25 ईयर्स. जो भी इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए. एवरी पर्सन who wishes to contest election has to fill a nomination and give some money as security deposit. A new system of declaration has been introduced of direction of Supreme Court. He has to give full details of first, serious criminal cases pending. Second, details of the assets and liabilities of the candidate. Third, educational qualification. नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन कैंपेनिंग. इलेक्शन कैंपेनिंग क्या होता है? इलेक्शन का मेन पर्पस लोगों को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ को चुनना होता है. इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव. हमारी कंट्री में इलेक्शन कैंपेनिंग फाइनल लिस्ट के अनाउंस से इलेक्शन तक 2 वीक्स
मीटिंग्स जो होती हैं इसमें कैंडिडेट्स वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन मीटिंग को एड्रेस करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट्स को मॉडराइज करती हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग में पॉलिटिकल पार्टीज बिग इश्यूज पर फोकस करते हैं। इट इज़ समटाइम्स necessary to regulate campaigning to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to complete. No party or candidate can appeal to them in the name of caste or religion. Second, use government resources for election campaigning. Third, spend more than 25 lakhs in a constituency for Lok Sabha or 10 lakhs in an assembly election. No party can use any place of worship for election propaganda. No party can use government vehicles, aircrafts, etc. Once announced, ministers shall not be foundation shares to any parties. नेक्स्ट टॉपिक है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। एवरी पर्सन हुज नेम इज एन वोटर लिस्ट कैन गो इज नियरली पोलिंग बूथ situated usually in a local school or government। जितने भी पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? जो भी स्कूल्स होते हैं, लोकल स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर हमारे पोलिंग बूथ बना दी जाते हैं। पुट अ मार्क ऑन हाई फिंगर, और हमको जो वोट देना पड़ता है वो क्या था? फिंगर्स के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। एंड एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पोलिंग बूथ में जो वोट दिए जाते हैं उसका प्रोसेस ये होगा। एंड एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। नाउडेज इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम बोलते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। ये वोट्स का रिकॉर्ड करती है। वंस polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place, और इसको secure place पे रखा जाता है। Counting to votes is done few days later within few hours of counting is completely. The result is announced and it becomes clean as to who is from the next government। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडियन डेमोक्रेटिक में जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? हम इलेक्शन में बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। फर्स्ट, वोटर लिस्ट में गलत नामों को जोड़ना और सही लोगों के नामों का ना हो। सेकेंड, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और ऑफिशियल्स का रूलिंग पार्टी द्वारा मिसयूज़ करना। थर्ड, रिच कैंडिडेट्स का अधिक पैसा खर्च होना। पोलिंग डे में वोटर्स को धमकाना। कई वोटर्स को धमकाया जाता है कि आप हमारे कैंडिडेट्स पर ही निशान लगाइएगा, दूसरे कैंडिडेट्स को मत दीजिएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक में होती हैं कि उनको डराया धमकाया जाता है कि हमारे कैंडिडेट्स को ही वोट दीजिएगा, दूसरे को मत दीजिएगा, हम आपको इतना पैसा दे रहा है, हमारा कैंडिडेट ही जीतना चाहिए। कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल नॉट प्रैक्टिसेस। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे इंडिया में बहुत ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, मतलब चुनाव आयोग है। इट एंजॉय द सेम
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद वो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होता है। In the last 25 years, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. जब इलेक्शन ऑफिशियल को लगता है कि कुछ बूथ में इलेक्शन फेयर नहीं हुए तो वह पूरी पूरी उस रिपोर्ट को ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या होता है? Another way to check the quality of the election process is to see where the people participate in it with enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. Now read these charts and draw some conclusion about the participation in India. People participation in election is usually measured by voter utmost fingers. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. If the election process is not free or fair, यदि हमारे यहाँ इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं होता, people will not continue or participate in exercise. फर्स्ट, लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन इस बात से डिसाइड होता है कि कितने परसेंट वोटर्स को वोट कास्ट किया। सेकेंड, इंडिया में पुअर और अनपुअर लीग होता, जैसे नंबर में वोट करते हैं, रिच और प्रिविलेज्ड लोग कम वोट में हिस्सा लेते हैं। हमारे इंडिया में जो पुअर, इलिटरेट और जो वैसे लोग होते हैं, अनडिप्राइव्ड लीगल लोग होते हैं, वो अधिक मेंबर्स वोट देते हैं, जबकि रिच और जो प्रिविलेज्ड होते हैं वो वोट में हिस्सा नहीं लेते। थर्ड, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. Fourth, the interest of voters in election-related activities has been increasing over the year. Next point पर आते हैं, expectation of election outcome. हमको election क्या क्या आउटकम मिल सकता है इलेक्शन से? One final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. अगर इलेक्शन फ्री और फेयर ना हो तो हमेशा पावरफुल पार्टी, जो पावरफुल पार्टी होती है वही इलेक्शन को जीतेगी। रूलिंग पार्टी इलेक्शन कभी नहीं जीत सकती है। Bearing very few disputed elections, the electoral outcome are usually expected as the people verdict by the defeated party. इस तरह से मैंने आपको जितने भी टॉपिक समझाए, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है। ऑल दिस लीड्स टू सिंपल कंक्लूजन। इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। Free and fair. Election in India are basically free and fair, but a few candidates may win purely on the basis of money, power, and unfair means. But the overall verdict of a general election still reflects popular performance. Are people perform based on real knowledge? Are the voters are getting a real choice? Question of this kind bring the many limitations and challenges of Indian election to our attention. Candidates and parties with a lot of money and short of their victory, but they do enjoy big unfair advantage over smaller parties and inadequate. In some parties of the country, candidates with a criminal connection have been able to push others out of the electoral race and secure ticket from major parties. Some families tend to democratic political parties
Tickets are distributed to relatives from these families. Very often election, other little choice to ordinary citizens for both the major parties are quite similar to each other, both policies and practice. Similar parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. These challenges exist not just India but also in a many established democracies. These deeper issues are a matter concern those who believe in democracy. That is why organizations have been demanding reforms and our electoral system. Can you think of some reforms? What can ordinary citizens do face these challenges? तो इस तरह से मैंने आपको लास्ट टॉपिक समझाया। अब मुझे लगता है कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको जो भी क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ बुक के अंदर के क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से बुक को रीड करना है, अच्छे से बुक को समझना है एंड जो भी क्वेश्चंस सेंड करती हूँ उनके आंसर्स को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि जब तक आप बुक अच्छे से रीड नहीं करेंगे आपको आंसर्स क्लियर नहीं होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा चैप्टर्स अच्छे से समझेंगे, लर्न करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में